یہ ہے جادوئی مینا کی کہانی۔ ایک بچہ، ایک آندھی، ایک انگوٹھی، ایک جزیرہ اور ایک ایسا نغمہ جو صدیوں سے قید تھا۔ یہ کہانی صرف جادو اور دیو کی نہیں، یہ سچ، قربانی اور انسان کی اصل پہچان کی کہانی ہے۔ تو سانسیں تھام لیجئے، دل کھول لیجئے اور سفر پر نکلنے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ سفر کسی اور دنیا کا نہیں بلکہ آپ کے اندر کی دنیا کا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا نغمہ سنا ہے جو صرف دل والوں کو سنائی دیتا ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ ایک بچہ صرف سچائی کے بل پر جادو کو شکست دے سکتا ہے؟ آج آپ سننے جا رہے ہیں ایک ایسی کہانی جو صرف کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے آپ کے اپنے اندر کا۔ رات کا سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا، بادلوں کی گرج ایسی تھی جیسے آسمان پر کوئی پرانا راز سنانا چاہتا ہو۔ زمین پر ہر شے ساکت تھی مگر فضا میں ایک بے چینی سی دوڑ رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار آندھی اٹھی، جیسے کسی نادیدہ طاقت نے وقت کا پہیہ گھما کر رکھ دیا ہو۔ اسی رات ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ اپنے گھر کے قریب کھیل رہا تھا۔ اس کی ماں اسے پکارتی رہی مگر وہ آسمان کی طرف دیکھتا رہا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ ہوا کے جھونکوں نے اس کی سانسوں میں خوف بھر کر رکھ دیا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی ہمت جاگ رہی تھی۔ اچانک آندھی نے زور پکڑا، درختوں کی شاخیں جھکنے لگی اور مٹی کے طوفان نے راستے دھندلا دیے۔ اس لمحے بچہ کچھ بھی نہ دیکھ سکا۔ ایک آواز سنائی دی، کوئی گہری گونجتی ہوئی آواز جیسے کسی اور دنیا سے آ رہی ہو۔ بچہ چیخا مگر آواز ہوا میں گم ہو کر رہ گئی اور پھر ایک روشنی نے اسے گھیر لیا۔ نہ وہ زمین پر تھا نہ آسمان پر، وہ کسی اور ہی جہان میں پہنچ چکا تھا۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہر چیز جادو لگتی تھی مگر کچھ نہ کچھ خطرناک بھی۔ جب بچہ آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے سامنے کوئی جانا پہچانا منظر نہیں ہوتا۔ چاروں طرف سناٹا ہے مگر وہ خوفناک نہیں بلکہ پرکشش ہے۔ زمین چمک رہی ہے، آسمان نیلا نہیں سنہری ہے، درختوں کے پتے ہوا سے نہیں روشنی سے جھوم رہے ہیں۔ وہ حیران ہے، ڈرا ہوا نہیں، اس کے دل میں خوف سے زیادہ حیرت ہے، جیسے کسی نے اس کی روح کو چھوا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، ہر قدم پر زمین میں روشنی دوڑتی ہے جیسے وہ اسے خوش آمدید کہہ رہی ہو۔ ایک پتھر پر لکھی ہوئی تحریر اسے دکھائی دیتی ہے، سچ کے راستے پر چلنے والے ہی جادو کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ جھکتا ہے، تحریر کو چھوتا ہے، ایک اور دروازہ کھل جاتا ہے، نہ لکڑی کا نہ لوہے کا، یہ دروازہ روشنی کا تھا اور اس کے پار ایک نیا جہاں۔ وہ قدم رکھتا ہے اور اچانک ہوا بدل جاتی ہے، ایک بو محسوس ہوتی ہے جیسے پرانے کاغذ، گیلی مٹی اور پرندوں کی خوشبو۔ یہ جگہ جادوئی ہے مگر یہ جادو مہربان نہیں، یہ آزمائش ہے۔ بچہ ابھی نہیں جانتا لیکن اس کا سفر اب صرف دلچسپی کا نہیں رہا، یہ ایک امتحان بن چکا ہے۔ روشنی کا دروازہ بند ہوا اور بچہ ایک تنگ و تاریک راہداری میں داخل ہو چکا ہے۔ قدموں کی چاپ گونج کر واپس آ رہی ہے جیسے دیواریں اس کی سانسیں سن رہی ہوں۔ اچانک سامنے سے دھواں اٹھا اور اس میں سے ایک سایہ نمودار ہوا، ایک بارش لمبا کالی چادر میں لپٹا ہوا جادوگر۔ اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی بلکہ ایک گہرا اندھیرا تھا جو سیدھا دل میں اترتا تھا۔ جادوگر نے گرجتی آواز میں کہا، تم کون ہو اور میرے جہاں میں کیسے آئے؟ بچہ لرز گیا مگر ہمت کر کے بولا، مجھے نہیں معلوم، میں بس آندھی میں کھو گیا تھا۔ جادوگر نے قہقہہ لگایا، آندھی کبھی بے مقصد نہیں آتی لڑکے، تم چنے گئے ہو۔ پھر اس نے زمین پر لکیر کھینچی اور ایک تالا دار باکس سامنے آیا، اگر تم اسے کھول لو تو اگلا دروازہ تمہارے لیے کھلے گا، لیکن یاد رکھو تالا طاقت سے نہیں سچائی سے کھلے گا۔ بچہ باکس کے قریب گیا، نہ چابی تھی نہ ہنر، صرف نیت۔ اس نے آنکھیں بند کی، دل سے کہا، میں کچھ چرانا نہیں چاہتا، بس سچ جاننا چاہتا ہوں۔ اور تب تالا خود بخود کھل گیا۔ باکس کے کھلتے ہی اندر سے ایک انگوٹھی نکلی، سادہ مگر چمکدار، جیسے روشنی کو اپنے اندر قید کر رکھا ہو۔ جادوگر کی آواز گونجی، یہ انگوٹھی صرف اس کے ہاتھ میں طاقت دے گی جو دل سے پاک ہو۔
बच्चा आहिस्तगी से अंगूठी पहनता है और उसी लम्हे जमीन लरसने लगती है। उसके कदमों के नीचे एक दायरा बनता है जिसमें चमकती हुई अलामतें उभरने लगती हैं। फिर अचानक एक नर्म मगर ताकतवर रोशनी ने उसे घेर लिया। आंखों के सामने मंजर बदलने लगता है। जंगल, पहाड़, नदी सब गायब हो जाते हैं और वो पहुंचता है एक तिलिस्माती जजीरे पर। यहाँ सब कुछ ख्वाब जैसा है। दरख्त बोलते नहीं मगर उनकी शाखों में सरगोशियां हैं। परिंदे गाते नहीं मगर उनके पर मौसीकी बिखेरते हैं। बच्चा हैरत से देखता है और तब उसे एक सतून दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ होता है, मैना को आवाज मत देना जब तक तुम खुद को ना पहचान लो। बच्चा सोचता है, मैना ये कौन है? और उसी लम्हे हवा में एक नगमा गूंजता है, ऐसा नगमा जो अल्फाज से खाली नहीं मगर एहसास से भरा हुआ था। ये जजीरा खामोश है मगर कुछ कहना चाहता है। वो नगमा जैसे रूह को छू रहा था। बच्चा उस आवाज के ताक़ुब में आगे बढ़ता है। कदमों तले जमीन नर्म महसूस हो रही थी, जैसे खुद जजीरा उसे रास्ता दिखा रहा हो। कुछ फासले पर एक चमकती हुई झील के किनारे वो रुका। वहां एक परिंदा बैठा हुआ था, न आम परिंदा न मुकम्मल जानदार। उसके पैरों पर सितारों की चमक थी और आंखों में सदियों की खामोशी। वही था मैना। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो गाता तो था मगर उसकी चोंच हिलती नहीं थी। आवाज फजा में गूंजती थी जैसे दिल से निकल रही हो। बच्चा नजदीक गया। मैना ने ना उड़ने की कोशिश की ना डर दिखाया, जैसे वो बरसों से उसकी राह देख रहा हो। अचानक बच्चे के दिल में एक जज्बा पैदा हुआ, एक अजीब उनसियत, एक नासमझी हुई वाबस्तगी। वो झुक कर बैठा और कहा, क्या तुम ही हो वो राज जिसके लिए ये जजीरा जागा है? मैना ने कुछ न कहा मगर उसकी आंखों में कहानी छुपी हुई थी। ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। ये आगाज है, अभी बहुत कुछ बाकी है मगर पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। जजीरे में खामोशी थी मगर फजा में बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। बच्चा मैना के करीब बैठा रहा और दिल में उसके नगमे को महसूस करता रहा। अचानक एक साया नमोदार हुआ, वही जादूगर जो अब पहले से ज्यादा सियाह और खतरनाक नजर आ रहा था। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। उसने गुस्से से बच्चे को देखा। तुमने उसे जगा दिया, तुमने मैना की आवाज सुन ली। बच्चा घबराकर पीछे हटा। मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद बोला। जादूगर ने कहकहा लगाया। वो बोला नहीं, वो तुम्हें चुना गया है मगर मैं उसकी ताकत चाहता हूं। उसने एक मंत्र पढ़ा और आसमान स्याह हो गया। हवा में आग की लिपटें नाचने लगी और जमीन पर दरारें पड़ने लगी। जादूगर ने मैना की तरफ हाथ बढ़ाया मगर मैना खामोश रहा। उसकी आंखों में अब रोशनी नहीं, चैलेंज था। बच्चा खड़ा हो गया। उसके हाथ में अंगूठी चमकने लगी। एक ताकत उसके अंदर जागी जो खौफ से नहीं, सच से पैदा हुई थी। उसने कहा, तुम इसकी ताकत नहीं छीन सकते क्योंकि ये ताकत किसी जादू की नहीं, सच्चाई की खिदमत में है। और जादूगर रुक गया। फजा में एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई। जादूगर पीछे हट गया और बच्चा मैना के करीब आकर रुक गया। उसने महसूस किया जैसे मैना की आंखों में रोशनी फिर से लौट आई हो। अचानक मैना के पर चमकने लगे और वो आसमान की तरफ बुलंद हुआ। जैसे ही वो एक मखसूस मकाम पर पहुंचा, उसका जिस्म रोशनी में तब्दील होने लगा। वो परिंदा जो अब तक सिर्फ गाता था, एकदम इंसानी शक्ल में ढलने लगा। रोशनी के धारे के दरमियान से एक दिलकश आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तुम मैना समझते थे। और जब रोशनी मध्यम हुई तो उसके सामने एक शहजादी खड़ी थी, हसीन, बावकार और पुरस्कार। बच्चा हैरान रह गया। तुम मैना हो? शहजादी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ, मैं एक तिलिस्म थी, सदियों से कैद थी आवाज के अंदर। मेरा नगमा सिर्फ वही सुन सकता था जो दिल से सच्चा हो। जादूगर गुस्से से चिल्ला उठा, ये तुमने क्या कर दिया? वो मेरी थी। शहजादी ने नरमी से कहा, नहीं, मैं किसी की नहीं, मैं सच्चाई की मुहाफिज हूं और तुम लालच के गुलाम हो। तुम्हें कभी कोई नगमा आजाद नहीं कर सकता। जादूगर की आंखों में सिर्फ एक जज्बा था, इंतकाम। उसने जमीन पर छड़ी मारी और एक धुआं सा बुलंद हुआ। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो मैं इस जजीरे को मिटा कर रख दूंगा। उसकी आवाज गूंजी और जजीरे की फजाएं कांपने लगी। परिंदे उड़ने लगे, दरख्त झुकने लगे और रोशनी मध्यम होने लगी।
शहजादी ने बच्चे को पीछे हटाया और खुद आगे बढ़ गई। तुम जितना चाहो शोर मचा लो, सच कभी फना नहीं होता और लालच कभी कामयाब नहीं होता। जादूगर ने अपनी स्याह ताकत से शहजादी पर वार किया, मगर बच्चा सामने आ गया। अंगूठी से एक रोशनी निकली और वो वार वापस पलट गया। जादूगर लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा, उसकी ताकत टूटने लगी। वो चीखा, ये मुमकिन नहीं, एक बच्चा मुझे हरा दे। शहजादी ने आहिस्ता से कहा, ये बच्चा नहीं, ये एक दिल वाला इंसान है। जादूगर की चादर धुआं हो गई, उसका जिस्म मट्टी में तहलील होने लगा और आखिरकार वो खत्म हो गया। जजीरा फिर से रोशन हो गया, हवा में खुशबू भर गई और ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात ने सुख का सांस लिया हो। लालच मिट चुका था और सच्चाई बच गई थी। जजीरा पुरसुकून था, न धुआं, न खतरा, न शोर, सिर्फ रोशनी, खुशबू और नरमी। बच्चा जो अब तक सिर्फ बच्चा न रहा था, खामोश खड़ा सोच रहा था। शहजादी उसके करीब आई, आंखों में तशक्कुर, दिल में एहतराम। उसने कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं बचाया, तुमने सच्चाई को बचाया। जजीरा चाहता है कि तुम यहाँ के निगहबान बनो, हमारी दुनिया के बादशाह। बच्चा चौंक गया, ख्वाब जैसा मौका, इज्जत, इख्तियार और ताकत, मगर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी सवाल का जवाब चाहिए हो। फिर आहिस्तगी से बोला, मैं वो सब नहीं हूं जो तुम्हें चाहिए। मैं सच्चा हूं मगर मुकम्मल नहीं, मैं बहादुर हूं मगर अभी सीख रहा हूं। शहजादी ने सवालिया निगाहों से देखा। बच्चा मुस्कुराकर बोला, मुझे वापस जाना है, वहां मेरे अपने हैं, मेरी माँ और मेरा गांव। मैं उनके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। जजीरा खामोश हो गया, जैसे हर शय उसके फैसले पर सर झुका रही हो। शहजादी ने अंगूठी वापस ले ली और आहिस्ता से कहा, तुमने सबसे मुश्किल काम किया है, न जीत को अपनाया न ताकत को, तुमने दिल को सुना। जजीरे ने उसे बादशाही की पेशकश की थी, तख्त, ताज, जादू और वो सब कुछ जो एक ख्वाब बन सकता था, लेकिन उसने चुना वापसी को, अपनों की, सादगी की और असल जिंदगी की। शहजादी ने उसे अलविदाई तोहफा दिया और एक छोटा सा सितारा जो उसके दिल की रोशनी के साथ जुड़ा हुआ था। ये तुम्हें हमेशा सच्चाई की राह पर रखेगा, चाहे तुम किसी भी दुनिया में हो। बच्चा उस लम्हे और जजीरे को हमेशा के लिए दिल में समेट कर वापस जाने लगा। वापसी का रास्ता रोशनी से बना हुआ था, जैसे हर कदम के साथ कायनात उसे दुआ दे रही हो। जब वो आंखें खोलता है तो खुद को अपने गांव के किनारे पाता है, वही दरख्त, वही मट्टी, वही जिंदगी, मगर कुछ बदला हुआ था। वो खुद अब वो बच्चा नहीं रहा था, वो एक मुकम्मल कहानी का किरदार था जिसने जादू को नहीं सच को अपनाया था। उसकी माँ उसे गले लगाती है और आंखों में खुशी झलक जाती है। उसने सब कुछ पाया सिर्फ छोड़कर, और शायद यही असल जादू था, किसी को कुछ दिए बगैर सब कुछ हासिल कर लेना। वक्त गुजरता गया मगर उसके दिल में जजीरे का वो नगमा बसा रहा। जिंदगी मामूल पर थी मगर वो मामूल अब खास लगता था। पानी का मटका भरना, माँ की बातें सुनना, गांव के बच्चों के साथ खेलना, ये सब अब जादू से कम नहीं था, मगर उसके अंदर कुछ जागा जागा सा रहता था। हर रात वो आसमान की तरफ देखता और वही सितारा जो उसे शहजादी ने दिया था हल्की रोशनी से चमकने लगता, जैसे उसकी रूह को याद दिलाता हो कि तुमने कुछ अजीम किया है। लोग सिर्फ उसे बच्चा समझते रहे, मगर वो जानता था कि वो एक ऐसी दुनिया से होकर आया है जिसे अल्फाज बयान नहीं कर सकते। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया, न अंगूठी का जिक्र, न मैना का और न ही जादूगर का, क्योंकि कुछ सफर ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल की दुनिया में महफूज रहते हैं। एक रोज एक परिंदा उसके कंधे पर आ बैठा, हल्का सा सफेद, जैसे जजीरे का खामोश पैगाम। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम अभी तक मेरे साथ हो? परिंदा कुछ न बोला, मगर उसकी मौजूदगी ने साबित कर दिया, कुछ सफर खत्म नहीं होते, वो बस अंदर ही जारी रहते हैं। साल गुजर गए, लेकिन उस बच्चे की कहानी गांव में अफसाना बन गई। कोई उसे जादुई बच्चा कहता, कोई ख्वाबों का मुहाफिज, मगर उसने कभी कोई दावा नहीं किया। उसके चेहरे पर हमेशा वही सादगी, वही खामोश मुस्कुराहट रही। उसने लोगों की मदद की, बच्चों को सच बोलना सिखाया और सबको ये बताया कि ताकत सिर्फ जादू या अंगूठी में नहीं, बल्कि नीयत, सदाकत और कुर्बानी में होती है।
कभी कभार वो तन्हा किसी पहाड़ी पर जा बैठता, वही सितारा हाथ में लेकर जो अब भी मध्यम रोशनी से चमकता था। वो खामोशी से उसे देखता और ज़ेरे लब कहता, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने दिल की सुनी थी। और शायद यही उस कहानी का सबसे बड़ा सबक था कि जादू किसी किताब, मंत्र या ताकत में नहीं, बल्कि उस लम्हे में होता है जब हम लालच को छोड़कर सच्चाई का इंतखाब करते हैं। वो बच्चा जो आंधी में गुम हो गया था, एक ऐसी दुनिया से वापस आया जहां हर चीज ख्वाब थी, और ख्वाब वही होते हैं जो हमें बेदार करते। कहानी खत्म हुई, मगर उस नगमे की गूंज आज भी सुनाई देती है। कहानियां सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं होती, बाज कहानियां हमें खुद से मिलवाती हैं। हम सब के अंदर एक मैना छुपा होता है, एक सच जो सिर्फ तब बेदार होता है जब हम खुद को पहचान लेते हैं। आज अगर आपने इस कहानी को दिल से सुना है तो एक सवाल अपने दिल से जरूर पूछिए, अगर आपके हाथ में वो अंगूठी होती तो आप क्या चुनते, ताकत या सच्चाई? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने जज्बात कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आप ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर आवाज एक एहसास है और हर कहानी एक जिंदगी।